हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. So first of all we should know about nucleus. Now it is central part of atom having effective positive charge. एटम का सेंट्रल पार्ट विच इज हैविंग इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज. तो एटम के सेंटर में जो एक स्मॉल वॉल्यूम मिलेगा आपको, एक स्मॉल स्पेस मिलेगा आपको, दैट स्पेस is having effective positive charge and that volume is known as nucleus of atom. So according to Rutherford alpha scattering experiment, at center of gold atom we have small volume of positive charge and that small volume is known as atomic nucleus. That small volume is known as atomic nucleus. Now in alpha scattering experiment of Rutherford atomic model, what we found, around nucleus, around effective positive charge volume inside atom of gold, we have scattering of alpha particles with appreciable angle of scattering, with appreciable angle of scattering. It means जो गोल्ड एटम होगा, जो उसके सेंटर में गोल्ड न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अराउंड अल्फा पार्टिकल अप्रिशिएबल एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेंगे और वहां पर हमें अप्रिशिएबल डेविएशन मिलेगा इन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. सो दैट स्मॉल effective positive charge volume inside gold atom is known as nucleus of gold atom. So that is nucleus. So this is nucleus. Now we have composition of nucleus. Now we have composition of nucleus. Now inside nucleus we are all aware about that we have neutrons and protons. So we know that inside nucleus we have neutrons and protons. Now mass of neutrons and mass of protons will make nuclear mass. Now mass of protons and mass of neutrons will make nuclear mass. Now we have Z, symbol of atomic number. Meaning of atomic number, number of electrons revolving around nucleus, number of electrons revolving around nucleus, or number of protons inside nucleus. So this is atomic number. In the same way we have mass number. Mass number, we have number of protons plus number of neutrons. So inside nucleus we have protons and they are having positive charge, and we have neutrons inside nucleus and they are having zero charge, so they are neutral, and protons are having positive charge. Now inside nucleus we have nuclear force, and nuclear force is one of the strongest force of nature. Now due to nuclear force, nucleus is stable in nature. Now we got atomic number,
we got mass number. Now we can find out number of neutrons inside nucleus, and that will be number of neutrons. It is equal to mass number minus atomic number. So these are basic information. These are the basic informations about nucleus, and these observation you got in 9th class, in 10th class also. So you can note down these informations about nucleus you can note down. Now we discuss size of nucleus. Now what we got basic information about nucleus. We know atomic number of nucleus, we know mass number of nucleus, or you can say that we know atomic number of element, we know mass number of element. Then we can easily find out number of neutrons inside nucleus of that element. So we have basic information about nucleus, number of electrons, number of protons, and number of neutrons we can have in our discussion. Now next we have size of nucleus. तो अब हम फोकस करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर. नाउ लेट अस कंसीडर साइज ऑफ न्यूक्लियस. Size of nucleus. So through experimentation, it has been found that radius of nucleus is directly proportional to 1/3 power of mass number. 1/3 power of mass number. एक्सपेरिमेंटली हमें एविडेंस मिला कि रेडियाई ऑफ एनी न्यूक्लियस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 power of mass number. Now after removing that sign of proportionality, we have R equal to R naught a power 1/3. Now this R naught is constant and it has value 1.2 into 10 power minus 15. तो ये आपको नोट करना है कि जो कांस्टेंट है हमें उसकी वैल्यू मालूम है 1.2 into 10 power minus 15 मीटर. So this is constant R naught. Now radii of various nucleus we can find out by this experimental formula, R equal to R naught into 1/3 power of mass number. 1/3 power of mass number. So if we have given mass number 27, if we have given mass number 8, then we can find out ratio of radii of two nucleus, that is R1 upon R2, and it is R naught 27 power 1/3 upon R naught 8 power 1/3. Now R naught से R naught कैंसिल हो जाएगा. Now R1 upon R2, and that is 3 power 3 and whole power 1/3. In the same way 2 power 3 and whole power 1/3. 3 से 3 cancel. Now it is 3/2. Now it is 3/2. So we can have ratio of radii of two nucleus whose mass number are given. Now we can have ratio of their radii. So by this experimentation we can find out ratio of radii of various nucleus. So this is all about size of nucleus. Now next we are going to find out nuclear density. So this is all about nuclear size of nucleus. Next we are having
nuclear density, that is nuclear density. Now density means simple formula mass upon volume. Density of nucleus, that is mass upon volume. Now small m, that is mass of nucleon. Now what is the meaning of nucleon? Nucleon means जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स. Now inside nucleus what we are having? We are having neutrons, we are having protons, and both are known as nucleon. So neutrons, protons को हम nucleon बोलेंगे. और small m किसका मास है? That is average mass of nucleon. तो स्मॉल m का मीनिंग है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन. तो न्यूक्लियॉन में दोनों पार्टिकल आ जाएंगे, प्रोटॉन भी आ जाएगा और न्यूट्रॉन भी आ जाएगा. नाउ वी हैव मास. तो अब मास को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज स्मॉल m इंटू ए का मीनिंग मास नंबर. मास नंबर में क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और स्मॉल m का मीनिंग मास ऑफ एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन. तो टोटल मास आ गया न्यूक्लियस का हमारे पास. नाउ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए अपॉन वॉल्यूम. अब न्यूक्लियस हमारी स्फेरिकल होती है, शेप न्यूक्लियस की स्फेरिकल होती है. इट मींस from Rutherford alpha scattering experiment, what we found a spherical positively charged volume at center of gold atom. So that spherically positively charged volume at center of gold atom means there is spherical shape of gold nucleus. तो अगर वहां पर गोल्ड न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल न्यूक्लियस का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वी नो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई एंड दैट इज r नॉट a पावर 1/3 एंड दैट इज होल क्यूब. अब यहां से हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. डेंसिटी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3 इंटू पाई आर नॉट पावर 3 ए पावर 1. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल. नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब. Now as we have constant figures in density, अब डेंसिटी में हमारे पास ईच एंड एवरी टर्म कैसी मिली हमें? ईच एंड एवरी टर्म कांस्टेंट फॉर्म में मिली है. अब चेक करो, मास भी कांस्टेंट, 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर नॉट भी कांस्टेंट. इट मींस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. इट मींस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. तो हेवियर न्यूक्लियस हो, लाइटर न्यूक्लियस हो, किसी भी टाइप की न्यूक्लियस हो, डेंसिटी आपको हर बार कैसी मिलेगी? डेंसिटी आपको हर बार कांस्टेंट ही मिलेगी. सो इन ईच एंड एवरी केस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस will be constant. तो ये आपको नोट करना है कि डेंसिटी न्यूक्लियस की आपको कांस्टेंट मिलेगी. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. and it is kept constant in nuclear research. It is always constant. So next we have relation of energy. With mass. So according to Einstein, energy has proper relation with mass.
Energy has proper relation with mass. So next we have relation of energy with mass. So according to Einstein equation, E equal to mc square. इट मीन्स अगर कहीं मास एग्जिस्ट कर रहा है तो मास एनर्जी भी कैरी कर रहा है, तो एनर्जी मास के अकॉर्डिंग आएगी और मास एनर्जी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मास को आपको होल्ड करके रखना है तो आपको उस मैटर के अंदर एनर्जी भी रखनी पड़ेगी। तो विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट हैव स्टेबल मास। तो अगर एनर्जी नहीं होगी तो मास स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें मास के साथ एनर्जी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ हियर वी हैव कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास एंड कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी if c square is constant, it means energy और mass आपके दोनों इंटर कन्वर्जन में आ सकते हैं। तो अगर मास आपका स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, then we have two types of masses. One is rest mass and number two is mass in motion. It means mass may be variable, mass variable हो सकता है। अगर स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट नहीं होगी तो मास आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होगा स्पीड भी चेंज होगी। तो ये सी स्क्वायर आपका कांस्टेंट कब होगा? जब मीडियम आपका वैक्यूम होगा। तो अगर रेस्ट मास को अगर आप कंसीडर करोगे तो वहां पर आपको एनर्जी भी डिफरेंट मिलेगी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट then it has mass equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास हमें इस टाइप से गिवन है, इलेक्ट्रॉन का हमें रेस्ट मास इस टाइप से गिवन है, तो अगर इस मास के अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो एनर्जी हम इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वेयर। तो ये आपको प्रॉपर वे से नोट करना है कि एनर्जी का रिलेशन क्या बनेगा मास के साथ। सो व्हाट वी हैव फाउंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि अगर मास में कोई चेंज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो अगर मास आपका वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मास में चेंज आएगा, तो अगर मास में चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी भी चेंज होगी। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी इफ देयर इज एनी चेंज इन मास देन देयर is same kind of change in energy. So we can write down this equation in that form, change in energy, and it is equal to change in mass into c square. Now change in mass and it is equal to change in energy upon c square. Now what we are having, c square kept constant। अगर c square constant है तो अगर मास में कोई चेंज आएगा तो एनर्जी में भी चेंज आएगा। so that c square kept constant। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है, अगर इलेक्ट्रॉन का आपको रेस्ट मास गिवन है तो हम इसको रेस्ट मास ना बोल के हम ये बोलेंगे दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट स्टेशनरी स्टेट। नाउ इफ इट इज हैविंग 9.1 into 10 power minus 31 kg, then according to this mass it is having energy 0.11 MeV। तो ये आपको नोट करना है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है अकॉर्डिंग टू इट्स मास एंड दैट इज नियरली 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको नोट करना है कि अकॉर्डिंग टू mass of electron how much energy is used to make
टू मेक दैट स्टेबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी वहां पर यूज करनी पड़ी, दैट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर कोई पार्टिकल नेचर में, अगर कोई सब्सटेंस नेचर में मोशन में होगा, तो जो उसके मास में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर एनर्जी में चेंज आएगा। सो दैट सी स्क्वायर केप्ट कांस्टेंट। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट पर है, तो उसका मास क्या है। अब अगर वो न्यूक्लियस से बाहर है, फ्री स्टेट में है, तो उसका मास क्या है और दोनों मास में क्या डिफरेंस आएगा, वो भी हम अब यहां पर हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बाउंड मास एंड फ्री स्टेट मास, और इन दोनों से पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। इन दोनों से पहले हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स from nucleus is known as binding energy। तो वो एनर्जी जिससे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, so that kind of energy is known as binding energy of nucleus। that kind of energy is known as binding energy of nucleus। So the energy required to free neutrons and protons from nucleus is known as binding energy of nucleus। तो जिस एनर्जी से आपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल किया था, जिस एनर्जी से आपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखा था, अगर आप वही सेम एनर्जी उस न्यूक्लियस को दोगे, तो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिक्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस इज सेम एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम गिवन न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को सेट करने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वही सेम एनर्जी आपको उनको फ्री कराने में देनी पड़ेगी। सो इन बोथ केसेस वी हैव बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन इस टाइप से लिखोगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिक्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, then it is known as binding energy, or you can write the energy required to free neutrons and protons from nucleus is again known as binding energy। तो दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन आपकी बनेगी, तो दोनों केस में आप बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन बना सकते हो। So this is binding energy of nucleus। Now let us take bound mass and free state mass। let us take bound mass and free state mass। अब हमारे पास एक केस है, अब इस केस के अंदर एक पैरेट है। अगर ये पैरेट प्रोटॉन है और ये केस अगर न्यूक्लियस है, तो अगर पैरेट हमेशा केस में ही रहेगा, तो इसकी ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। बट अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे, केज से बाहर निकालेंगे और इसको फ्री छोड़ देंगे, तो इसकी ग्रोथ अप्रिशिएबल वे से होगी और इसकी जो मूवमेंट है वो शार्प हो जाएगी और इसकी ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी और इसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। तो उसी टाइप से अगर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को आप फ्री स्टेट में लोगे तो उनका मास ज्यादा आएगा, और अगर आप उनको बाउंड स्टेट में लोगे तो उनका मास कम आएगा।
तो अब आपको यहां पर यही सेम डिस्कशन यहां पर चेक करना है कि अगर हम किसी केज के अंदर लॉक हैं तो हमारा जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, और अगर हम केज को ओपन करके बाहर स्पीड से निकलेंगे तो हमारे जो ग्रोथ होगा वो इंप्रूव होगा, हमारा मास इंक्रीज होगा। तो वही सेम टेक्निक हम यहां लगाएंगे। व्हेन वी आर केप्ट इनसाइड एनी केज देन देयर इज प्रॉब्लम इन ग्रोथ रेट ऑफ आवर बॉडी, एंड इफ वी आर फ्री from any case then there is appreciable increase in growth of our body। तो ग्रोथ को अगर इंक्रीज करना है तो हमें फ्री स्टेट में रहना पड़ेगा। तो उसी टाइप से हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस अगर आपकी स्टेबल है और अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आपके फिक्स हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो मास कैरी होगा वो बाउंड मास कैरी होगा। तो वहां पर जो बाउंड मास होगा दैट इज mass of nucleus, that is mass of nucleus in bound state। Now here we have mass of nucleons in free state। Here we have mass of nucleons in free state। तो फ्री स्टेट में जो मास आएगा, वो बाउंड स्टेट से ज्यादा आएगा। इसका मीनिंग अगर हम न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को फिक्स करेंगे और फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो अब यहां पर जब न्यूक्लियस आपकी ब्रेक हो जाएगी तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपके बाहर आ जाएंगे और फ्री स्टेट में आ जाएंगे और ये प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। तो इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो इनके मास में इंक्रीज आएगा, आपने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर मास में कोई चेंज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी में भी चेंज आएगा, बिकॉज मास प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर ये स्पीड से बाहर निकलेंगे तो अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनका मास भी इंक्रीज होगा। तो ये आपको प्रॉपर वे से माइंड में रखना है कि अगर आप किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करोगे और अगर न्यूक्लियस को आप ब्रेक कर चुके हो तो अगर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपके बाहर आ रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स अगर काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहे हो, स्पीड से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मास में जो अप्रिशिएबल इंक्रीज होगा वो इंक्रीज कहां से होगा? दैट इंक्रीज विल कम फ्रॉम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, दैट इज इंक्रीज इन एनर्जी। सो this is difference in bound mass and free state mass, that is difference in bound mass and free state mass। तो अगर आप किसी बच्चे को कहीं पर लॉक कर दोगे और अगर उस बच्चे को बाहर से मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगी लॉक तोड़ने की, तो वो उस मोटिवेशनल एनर्जी से लॉक को तोड़ेगा और हाई स्पीड से बाहर निकलेगा। जब वो हाई स्पीड से बाहर निकलेगा तो जो उसका मास बाउंड था उसके साथ काइनेटिक एनर्जी अटैच हो जाएगी, और उस केस में जो उसका टोटल मास होगा वो बाउंड मास से ज्यादा हो जाएगा। वो जो टोटल मास होगा वो बाउंड मास से आपको ज्यादा मिलेगा। सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इन मास will bring a new concept and that is known as mass defect। तो अभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर सकते हो। नाउ जो एनर्जी आप न्यूक्लियस को बाहर से दोगे वो एनर्जी अब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को मिलेगी। अब ये एनर्जी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस एनर्जी से इनके मास में इंक्रीज आएगा और इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहां पर फील करेंगे। तो जिस एनर्जी से आप न्यूक्लियस को ब्रेक करोगे वो एनर्जी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। और इस एनर्जी की वजह से जो एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हुई है, इस एनर्जी की वजह से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के मास में जो इंक्रीज आएगा दैट इंक्रीज इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब
जो भी इंक्रीज इन मास मिलेगा आपको, वो इंक्रीज इन मास किसके रेस्पेक्ट में होगा? दैट इज इंक्रीज इन एनर्जी, दैट इज इंक्रीज इन एनर्जी. नाउ लेट अस कंसीडर अ सिंपल formulation. Now let us we have energy in rest mass m naught c square. Now m naught का मीनिंग क्या है? रेस्ट मास. रेस्ट मास का मीनिंग यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर है. नाउ E2 that is energy of particle when it is in motion. Mass in motion or particle in motion. Now E2 is equal to rest mass plus change in mass into c square. तो ये जो मास है ये कब मिला आपको? जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में था. और जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा तो उसकी स्टेट कैसी होती? स्टेट आपकी फ्री होगी. तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी स्टेट फ्री होगी, और फ्री स्टेट का मास बाउंड स्टेट के मास से हमें ज्यादा मिलेगा. तो उस केस में हमने क्या लिखा? रेस्ट मास प्लस चेंज इन मास. नाउ E2 इज इक्वल टू m naught c square plus delta m c square. Now what we got? We got E2 minus E1 and it is equal to delta mc square. Now change in energy is equal to change in mass into c square. तो यही मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एनर्जी में माइन्यूट सा भी चेंज आएगा तो मास में भी आपको चेंज मिलेगा. तो मास में भी आपको चेंज मिलेगा. सो डिफरेंस in bound state mass and free state mass is known as mass defect. That is mass defect. तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप किसी पार्टिकल को किसी बाउंड स्टेट से बाहर निकालोगे बाय गिविंग सम एनर्जी टू दैट ऑब्जेक्ट और टू दैट पार्टिकल, तो पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से उसका मास इंक्रीज होगा, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, उसके अंदर ग्रोथ में चेंज आएगा, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी, उसका मास अप्रिशिएबल वे से इंक्रीज होगा और उसको बाहर निकलने की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. तो अगर हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर एनर्जी रखेंगे तो वो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को मिलेगी, न्यूक्लियॉन्स उससे मोटिवेट होंगे, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उनका मास इंक्रीज होगा और उनको अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी और वो बाहर आएंगे. सो दैट चेंज इन एनर्जी इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड दैट मास डिफेक्ट इज नोन एज difference in bound state mass and free state mass is known as mass defect. So difference in bound mass of nucleus and free state mass of nucleons is known as mass defect. So this mass defect will be responsible for binding energy. So this is the energy required to free neutrons and protons from any nucleus. So this is the binding energy, and this energy is required to bring neutrons, protons from bound state to free state. तो ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट में लाने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मास डिफेक्ट. एंड वी हैव गिवन न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. तो आप इसको नोट कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.